Bismillah Rahman Rahim. In this fast track session, I will quickly cover the most important topics of the Computer Science PBA exam. In few sessions, you will learn important JavaScript programs, HTML and CSS web page design, flowchart, concept map, and basic hardware and software concepts. If you practice these topics carefully, you can score good marks in the PBA exam. So let's start our first topic, that is JavaScript basics. Learn smart. I will cover important questions only and score better. What we will cover in this video: fast track plan for today, brief introduction to the PBA paper patterns, why section A is important for scoring, JavaScript basic needed for PBA, important exam style examples, debugging practice, and final quick recap. This is your thing. This is a quick learning session, so we will move to practical content immediately instead of spending too much time on theory. What is PBA? PBA stands for Practical Based Assessment. It checks practical understanding of computer science. Students are expected to solve application-based questions. The paper focuses on skills such as programming. आपको क्या क्या चीजें इसमें PBA में कवर करना होगी? Programming, web page design, flowcharts, and applied tasks. Remember, in PBA, students score better when they know the format, logic, and standard question style. Paper structure, you must remember total marks equal to 40, section A, total 24 marks, section B, 16 marks. Section A includes JavaScript, HTML, and CSS. Section B includes flowchart, concept map, hardware, software, and business plan. Smart strategy. Since section A carries more marks, students should begin with the most important JavaScript questions types first. This is my recommendation, my advice to you. You will start first section A. Section A learning starts here. JavaScript is one of the most important scoring areas in PBA. Many questions are based on simple logics. If students learn the structure of basic programs, they can solve many variations. Today we will cover the foundations needed for quick success. Today we will focus on input, output, variables, conditions, loops, and common PBA question types. Important concept for PBA, variables. वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स आपको पता है कि एक ऐसे मेमोरी स्पेस होती है जिनको हम नाम देने को वेरिएबल कहते हैं और इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं और दीज वैल्यूज कैन बी चेंज. टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर से इनपुट हम कैसे लेते हैं? डिस्प्लेइंग द आउटपुट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर, if else statement, for loop, debugging simple errors. These are the important concepts of PBA. How to take input and display output. Do you know? Suppose I have written let num equal to parse int, prompt enter a number. हम prompt के थ्रू यूजर से इनपुट लेते हैं. कौन सा फंक्शन? prompt. लेकिन parse int क्यों लिखती है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इनपुट होती है. अगर हमने नेम लेना हो तो फिर हम parse int नहीं लिखेंगे. We will use only prompt enter the name. याद रखिएगा, स्ट्रिंग के लिए आप जस्ट prompt यूज करेंगे, लेकिन इंटीजर के लिए you have to parse int. You have to use this function parse int. Let num equal to, आपने वेरिएबल के साथ let लाजमी लगाना है. document.write ये क्या करेगा? num को प्रिंट कर देगा. Prompt is used to take input from the user. Parse int converts the input into an integer value. Document.write display the result on the screen. And exam tip. In many questions, students lose marks because they forgot to convert input into integer. वो क्यों मार्क्स लॉस कर देते हैं? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं करते
इंटीजर को, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। यूजिंग वेरिएबल्स इन प्रोग्राम। वेरिएबल स्टोर वैल्यूज, वेरिएबल क्या करती है, स्टोर वैल्यू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा लेट आइटम 1 इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू 20 है, आइटम 2 की वैल्यू 60 है, आइटम 3 की वैल्यू 75 है, और फिर लेट टोटल प्राइस विल गेट द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड। आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3 ये तीनों को ऐड करेगा और टोटल प्राइस में स्टोर करेगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल प्राइस में इसको शो कर देगा। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल दी गई है, इसमें एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें हमने तीन वैल्यू को, तीन प्राइसेस को ऐड करके उसका सम अप शो किया है। Variables are used to store values. They help us perform calculation easily. PBA question often ask students to calculate total, sum, area और volume. ये PBA में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि सम करना, एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना। Key points: always choose meaningful variable names such as total price, area और num. एक और important बात जो मैं लिखना इधर भूल गया हूं कि you have to write variable name without space. बहुत important टिप है ये। आप total space price नहीं लिख सकते। ठीक है, you have to write total price together or you can write total underscore price. Simple calculation style questions. Suppose let length equal to 10, let width equal to 5, let area equal to length time width. मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि when you are declaring a value to a variable, then you must use let. Clear? Let आपने लास्ट में यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया इक्वल टू प्लस एरिया। अगर आपको बहुत से स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट में कि हम प्रोग्राम कहां से स्टार्ट करें। अगर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आता है तो आपने यहां से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ, ये कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके साथ स्क्रिप्ट वगैरह लिख देंगे तो वो ऑप्शनल होगा, लिख देंगे तो ठीक है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि उसने आपकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक चेक करनी है, कोड की, कि आप कोड कैसे लिखते हो। क्लियर? Multiplication operator asterisk is used here. The result is stored in a variable named area. This style is common in geometry-based PBA question. Common question type area of rectangle. आपको किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के कैलकुलेट करने को, सम ऑफ वैल्यूज के करने को, टोटल कॉस्ट को एंड एवरेज को, इन चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ना क्लियर हो तो मुझे बता दीजिएगा, इफ आई कैन कवर। हाउ डिसीजंस आर मेड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में डिसीजंस कैसे किए जाते हैं? जैसे कि हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, हमने क्या लिखना होता है, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे कंडीशन लगाते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? ऑलवेज सिंटेक्स याद रखें। आपने क्या करना होता है, आपने इफ लगाना, आपने लिखा इफ, यहाँ पे इफ लिखते हैं, इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के बाद आपने ये ब्रेसिस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी हो तो ब्रेसिस लगाना लाजमी नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा करनी हो तो आपको लाजमी लगाना है फिर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एल्स पार्ट आ जाता है, ये इसका एल्स पार्ट आ जाता है। एल्स पार्ट स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे कर लिया, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, जो भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये इसका इफ एल्स का एक सिंटेक्स होता है। यहाँ पे कंडीशन देते हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इस एग्जांपल मैंने नम ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, आप रिमाइंडर भी चेक कर सकते हो, आप वैल्यू भी लेस देन भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन भी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, ये इफ और एल्स का ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है। इफ नम ग्रेटर देन 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पॉजिटिव नंबर, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेगेटिव नंबर। इफ चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या कर दिया जाएगा, इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा और ये वाला एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर? एल्स रन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। दिस इज यूजफुल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ये किसके लिए यूजफुल होगा कि आपको एग्जामिनर पीबीए में क्वेश्चन पूछता है कि बताएं नंबर इज पॉजिटिव है या नेगेटिव,
बताएं कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 हो गए या 40 हो गए, वो स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ। एंड ग्रेटर स्मॉलर क्वेश्चन, और पूछेगा कि 2 नंबर मैं आपको देता हूं, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा, वो दे दे। 3 नंबर दे देगा आपको, 4 नंबर का कह देगा। स्मॉलर का पूछ सकता है या ग्रेटर का पूछ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। इसमें हमने क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है और उसमें देखना है एक नंबर इवन है या ऑड है। ये कंप्लीट कोड है इसका। लेट नम इक्वल टू पार्स इंट। मैंने पार्स इंट क्यों यूज किया, क्या आप जानते हैं? आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे कवर अप करके आया हूं। प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, आप एक नंबर एंटर करेंगे और नम परसेंटेज 2, आप 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को और इसका रिमाइंडर गेट करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैं लिखा 17 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 8 2s आर 16 होता है, बाकी क्या बचेगा 1। तो ये रिमाइंडर, ये चीज मुझे रिमाइंडर देगा। ठीक है, अगर सपोज देखिए मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं लिखता हूं b इक्वल टू 10 रिमाइंडर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको पता है, इसमें वो आंसर आपको देगा 3, क्योंकि इंटीजर होगा तो 3 देगा, बाकी वैल्यू को इग्नोर कर देगा। जबकि इसमें मैं उसका रिमाइंडर गेट कर रहा हूं, 10 को डिवाइड करे 3 के साथ और बाकी क्या बचता है, बाकी 1 बचता है। ठीक है, तो इस केस में वो 1 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिमाइंडर गेट कर रहा हूं। तो इफ num percentage 2 equal to 0, it means number is even, otherwise number is odd. Logic: if the remainder after divisible by 2 is 0, the number is even, otherwise it is odd. Another problem, another popular PBS style logic question. Let a equal to parse int prompt, enter first number, enter second number. If a is greater than b, then largest number is a, otherwise largest number is b. ये भी एक पॉपुलर एग्जाम का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पॉपुलर मींस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फर्स्ट इनपुट बोथ वैल्यूज, देन compare them using greater than and then display the larger value. लूप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिपीटेशन। अब हम लूप की तरफ मूव करते हैं। लूप आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिपीटेशन के लिए। फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस कर दिया। इसमें क्या होता है, ये इसकी इनिशियलाइजेशन होती है। आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है, जब ये कोड स्टार्ट होता है, तो वो एक बार इनिशियलाइजेशन करता है, इसके बाद बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होती, एक बार होती है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसका कंडीशन को चेक करना। ये इसकी कंडीशन को चेक कर रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इसकी बॉडी की तरफ मूव करेगा। ये बॉडी यहाँ पे इसकी एंड हो जाती है, एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी बॉडी में। तो यहां से फिर कहां पे जाएगा, इसके बाद वो मूव करेगा इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वो कहां पे मूव करेगा, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को चेक करने के बाद फिर ऐसे ही ये मूव करता रहता है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहती है। क्लियर? जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप इसकी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, यानी लूप इसकी बॉडी को इग्नोर करेगा और वो नेक्स्ट मूव करेगा। A loop repeats instructions. It is useful for tables, series pattern and counting. आपसे वो टेबल लिखवा सकता है, सीरीज लिखवा सकता है, कोई पैटर्न पूछ सकता है एंड काउंटिंग आपसे करवा सकता है। टेबल की एग्जांपल वो कहता है आप ऐसा करें, 5 का टेबल लिखें, तो आपने 5 का टेबल लिखना है। सीरीज वो कहेगा ये सीरीज लिखे 1 + 3 4 + 3 7 7 + 3 10 + 13। वो इस तरह की सीरीज को भी आपको दे सकता है। वो आपको पैटर्न भी दे सकता है। जैसे पैटर्न की एग्जांपल, ये मैंने पैटर्न की एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 5 चले, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 स्टार और यहाँ पे फिर 5 स्टार। ये एक पैटर्न, वो आपको ये पैटर्न भी दे सकता है। आप जावास्क्रिप्ट की वीडियो को देखेंगे डिटेल, वहां पे से आपको आइडिया हो जाएगा। और काउंटिंग भी पूछ सकता है। काउंटिंग वो कह सकता है कि आप ऐसा करें कि 1 से लेके 100 तक मुझे इवन नंबर शो करने हैं। ठीक है, तो आपको इसका प्रोग्राम लिखना। वो कह सकता है मुझे 1 से लेके 50 तक मुझे 5 के फैक्टर्स शो करने हैं। तो यू हैव टू रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग वैल्यू जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसके बाद स्टॉपिंग कंडीशन जिसको हम कंडीशन कहते हैं, और थर्ड वन इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट।
डिक्रीमेंट उस सूरत में होता है जैसा कि हमने 10 से स्टार्ट करना है और 1 की तरफ मूव करना है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ अ नंबर, अगर आपने किसी भी नंबर का टेबल शो करना है तो उसके ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। लेट्स नम इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। प्रॉम्प्ट आपको पता है यूजर इनपुट के लिए यूज किया जाता है। पास इंट फंक्शंस कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, सपोज अगर 5 लिखेंगे तो वो 5 का टेबल लिखेगा फ्रॉम 1 to 10। कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक मूव करेगा। ठीक है। और नम में क्या करेगा? नम में वो नंबर होगा, अगर यहाँ पे 5 होगा 5 ये मल्टीप्लाई शो करेगा, यहाँ पे आपको पता 1 आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, फिर नम मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 5 मल्टीप्लाई 1 का आंसर 5 आ जाएगा और ये ब्रेक कर देगा, ताकि अगर जावास्क्रिप्ट को हमने ब्राउजर में यूज करते हैं तो उसके लिए हमें ये ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर लूप रिपीट होगा 5 फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 10 शो कर देगा। फिर यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, जबकि लूप की वैल्यू सिर्फ चेंज होती जा रही है। 5 3 15 सो ऑन मूव करता हुआ 5 टाइम्स 10 इक्वल टू 50 ये डिस्प्ले करेगा। For table question, student must clear join text and calculation in the output line. सिंपल फैक्टोरियल लॉजिक यूजिंग लूप, हमने फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि फैक्टोरियल में क्या किया जाता है कि आपके पास कोई भी नंबर आप एंटर करते हैं, जैसा कि 5 आपने एंटर किया तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। मैं 5 से लेके 1 की तरफ मल्टीप्लाई कर लूं या फिर 1 से लेके 5 की तरफ मूव कर लूं मल्टीप्लाई करते हुए, तो बात तो सेम ही है। तो हमने बॉडी में क्या लिखा? बॉडी में हमने ये चीज लिखी हुई है जिसमें हमने लिखा हुआ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट टाइम्स आई। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगी? उसके नंबर तक। अगर आपने 5 लिखा हुआ तो ये 5 तक मूव करेगी, अगर 6 लिखा हुआ तो वो 6 तक मूव कर देगी। और फैक्ट में बाय डिफॉल्ट आपने 1 लिखा हुआ, ये फैक्ट में 1 लिखना ना भूलिएगा। ठीक है। 0 लिखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो इसलिए आपने फैक्ट में 1 लिखा। 1 टाइम्स 1 1 आ गया, 2 टाइम्स 1 2 आ गया। ये मैंने 1 कहां से लिया? ये मैंने 1 ये लिया था। 3 टाइम्स 2, ये मैंने 2 कहां से लिया? ये मैंने 2 इधर से लिया, जो फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू थी। 6 हो गया। 4 टाइम्स 6, ये मैंने 6 लिया इधर से, जो कि फैक्टोरियल की लास्ट वैल्यू थी 24। 5 times 24 equal to 120 and then 120 times 6 equal to 720। ओके, तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंबाइंस वेरिएबल लूप एंड कैलकुलेशंस इन वन क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो आपने फैक्टोरियल लास्ट में फैक्टोरियल को शो करना है। ये लेबल है इसका और ये वैल्यू है इसकी फैक्ट, जो कि हमने इसमें स्टोर की हुई थी। How the logic works: start factorial with 1, take a number as input from the user, use a loop from 1 to the entered number, multiply by fact by each value of I, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। Store the updated result in fact, display the final factorial at the end, and factorial question helps students practice both variables and loops together. Most important JavaScript question for PBA students should practice these first: even or odd number, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये सब आपने मुझे करके दिखाने हैं, बताना है। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, टेबल ऑफ अ नंबर, एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, टोटल और सम, सीरीज जनरेशन। बेस्ट preparation methods: do not memorize only one question, learn the logic pattern। आपको लॉजिक पैटर्न पता होना चाहिए कि लूप कैसे काम करता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है। हमने ये प्रोग्राम को रटा नहीं लगाया होता, हमने कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेमोराइज किया होता है। ठीक है, कि काम कैसे करना है इसका, ये काम क्या करता है, हमने सिर्फ लॉजिक को देखते हैं। बिकॉज द सेम लॉजिक अपीयर्स इन डिफरेंट वर्डिंग। फाइंड द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग कोड, आपको कोड भी दिया जाएगा कि आपने इसमें से मिस्टेक फाइंड करें। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है? वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इसमें मिस्टेक कहां कहां पे है। इसमें 2 मिस्टेक्स है, मैं आपको बताता हूं। फाइंड कर लिया, चलिए।
लेट 4 इक्वल टू रोज, मैंने लिखा मैंने वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आपने वेरिएबल का नाम 4, आप वेरिएबल का नाम 4 से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये वेरिएबल के रूल्स में आता है। ठीक है, आप वीडियो में देखें, वहां पे मैंने रूल्स को डिस्कस किया होगा, तो आप डिटेल में जा सकते हैं। लिहाजा आप 4 नहीं लिख सकते, आप रोज इक्वल टू 4, लेट रोज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। पर लेट आई इक्वल टू रोज से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 0 की तरफ मूव करता जा रहा। देखें, द लूप कंडीशन इज रॉन्ग। ठीक है, आई क्या होना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी कि अगर आप 4 से मूव कर रहे हो तो 3 की तरफ कब जाएंगे, जब आप माइनस करेंगे। तो 2 की तरफ अब फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। आप कहते हैं जब तक आई ग्रेटर उससे बड़ा रहता है तो उस वक्त तक मूव करता रहे। करेक्ट वर्जन ऑफ द डिबगिंग एग्जांपल, दिस इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द डिबगिंग। रोज इक्वल टू 4 लिख दिया, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, रोज को 4 करने के बाद यहां पे भी इसकी कंडीशन भी ठीक कर दी। एक तो ये कंडीशन मैंने ठीक की, और रोज इक्वल टू 4 मैंने लिख दिया। यहाँ पे रोज इक्वल टू 4 कर दिया, और यहाँ पे कंडीशन मैंने आई इक्वल टू 0 कर दी। Debugging strategy, always check variable names, brackets, semicolon and loop condition carefully। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अपने वेरिएबल्स के नेम को देखना है कि वेरिएबल के नेम्स क्या है, इसके ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन इसमें मिसिंग तो नहीं है, और लूप की कंडीशन क्या है, ये केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। ये स्ट्रेटजी होती है डिबग करने के लिए। Common mistakes students make in the exam, avoid these errors in the exam। Number 1 is forgetting to use parseInt। आपने parseInt को यूज करना नहीं भूलना in case of number only। जहां पे टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा वहां पे parseInt आपने नहीं यूज करना। Writing incorrect variable names, using wrong comparison or loop condition, forgetting braces or semicolons, writing incomplete output statement, memorizing code without understanding the logic। Importance: small syntax mistakes can make the whole program incorrect. So neat and clean and carefully writing is necessary. How to prepare smartly after this video. Quick homework for students: write the even or odd program yourself, write a program for positive or negative number, practice a table program using loop, try one factorial question, solve one debugging example, best practice rule। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, और उसमें देखिए उसमें लॉजिक कौन सी यूज की गई है। देन राइट द स्टेप इन सिंपल फॉर्म बिफोर कोडिंग। What we learned today, we understand the paper pattern briefly. We started directly with the section A learning. We covered input output variable condition and loops. We studied important previous style JavaScript examples. We also practiced a debugging question. And next video is about, we can continue with more important JavaScript program or move to HTML and CSS with fast track learning.